afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Jude. Are you able to see the whiteboard? Okay, so in the last class, we are going through the demodulation of AM signal, where we have seen the AM signal, which is passed through a square law demodulator. In that case, okay, so we have to see these three types of demodulation techniques, that is square law demodulator, envelope detector, and the synchronous detector. So in square law modulator, we have seen that we have a square law device, and through that square law device, that modulated signal, that is ST, is passed through, and hence for that particular signal we have got, as we know, that capacitor allows to pass the high frequency signal, and it does not allow to pass the low frequency signal. So at the output we will get the low frequency signal. Okay, so due to which we will get the modulating or the matcher signal. Okay, the next one is the synchronous detector, where we have seen that why it is known as the synchronous detector, because the same type of frequency, that is same type of carrier signal, is get multiplied with the modulated signal, and when it is passed through a low pass filter, we will get the baseband signal. Okay, now the next is the envelope detector. Okay, so what is the basic circuit of this envelope detector? So the signal what we have, the amplitude modulated we have, is like this. We have seen this picture a number of times. We have this type of signal. Okay, so here we have the modulated signal. Now
What we have to find out from this modulated signal, this is the ST, the modulated signal. Here we have the modulated signal. So in this type of modulation, what is getting modulated? Which property or which characteristic of the signal is getting modulated? The type of modulation which we are going through. So what we are studying? Can anybody tell me? कोई बताएंगे मुझे कि what we are going through? Am I audible? Yes, sir. ओके तो कोई कुछ बोलते नहीं हो तो पता कैसे चलेगा? मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग प्रेजेंट हो या नहीं हो, या मोबाइल ऑन करके कहीं अपना कुछ और काम कर रहे हो? So what type of demodulation we are going through? Amplitude modulation. Yes. We are now studying amplitude modulation, and we are going through the demodulation of AM signal. Okay. So here, which characteristic of the signal has been modulated? फिर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने पूछा कि हम ये जो मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, इसमें सिग्नल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूलेट हो रहा है? Amplitude, sir. एम्पलीट्यूड तो क्लियरली दिख रहा है ना कि दिस इज द कैरियर सिग्नल, और ये जो कैरियर सिग्नल है हमारे पास, ये कैरियर सिग्नल ही तो एम्पलीट्यूड, इसका ही तो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। और वो एम्पलीट्यूड जो वेरी कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग द सिग्नल विच इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे ये जो डैश्ड जो ड्रॉ किया गया है, this is nothing but the modulating signal. So based upon the change in the amplitude of the modulating signal, the amplitude of the carrier is changing, है ना? Based upon the instantaneous value of the modulating signal, the amplitude of the carrier is varying or changing. Okay, so now what we have to do here, we have to we have got this signal at the receiver. Okay, ये सिग्नल पहुंचा कहां? रिसीवर के पास। नाउ अब ये रिसीवर क्या करेगा? नाउ दिस रिसीवर विल डिटेक्ट दिस रिसीवर विल डू द प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन। रिसीवर क्या करेगा? डीमॉड्यूलेशन का काम करेगा। ओके, demodulation का काम करेगा, and in this demodulation what is done, the carrier and the modulating signal are separated from each other, है ना? तो यहाँ पर अभी जो इन्वेलप डिटेक्टर हम पढ़ेंगे वहां पर हम करेंगे क्या? ये जो इन्वेलप है, ये जो इन्वेलप है जो कि मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, दिस विल बी डिटेक्टेड। और अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो यही तो हमारा मैसेज सिग्नल है। इसका मतलब है कि ये पीक, ये पीक, ये पीक, ये जो सिग्नल कैरियर का जो ये सारा पीक्स है, इन सारे पीक्स को अगर हम डिटेक्ट कर लें तो उनको मिलाकर हमें एक सिग्नल मिलेगा दैट विल रिजेंबल द मैसेज सिग्नल। ओके, सो द वेरी बेसिक सर्किट फॉर दैट एनवेलप डिटेक्टर इज, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एनवेलप डिटेक्टर। क्योंकि ये जो इन्वेलप है हमारे पास, इन्वेलप मतलब क्या?
मतलब ये कवर है और उस कवर के अंदर क्या है, कैरियर सिग्नल बंद है। ओके, सो हम अगर इस एनवेलप को डिटेक्ट कर लें, सो दैट एनवेलप इज नथिंग बट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और द मैसेज सिग्नल और द बेस बैंड सिग्नल। ओके, सो द वेरी बेसिक सर्किट ऑफ दिस amplitude envelope detector is, we will have okay, so you will tell me that what are the components which I have included in this circuit. Okay, okay, so here what are the components which you can see? Transformer. Yes, so very first is the transformer. Next, Diode, forward bias. diode है, और this is capacitor and this is resistor. Okay, so और ये जो सर्किट है, अगर अच्छा यहाँ पर मान लें अभी फिलहाल कि ये कैपेसिटर नहीं है। ओके, मान लें ये कैपेसिटर नहीं है अभी, ठीक है, तो क्या है, विच टाइप ऑफ सर्किट इज दिस, ये कौन सा सर्किट है? Half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर? फिर हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट को DC में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यही है ना, ये क्या है, ये सर्किट जो है ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और अगर हमारा सिग्नल कुछ ऐसा है, ओके, कोई एक सिग्नल है xt और वो जो सिग्नल है वो ऐसा दिया हुआ है, तो आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या मिलेगा? पॉजिटिव हाफ में जो है जो पॉजिटिव हाफ में है हमें सिर्फ वो वाला पार्ट मिलेगा, मतलब ये मिलेगा और ये मिलेगा, है ना। इसके अलावा सो दीज आर द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइनसॉइडल सिग्नल। तो पॉजिटिव पार्ट हमें इस आउटपुट में मिलेगा और नेगेटिव पार्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो डीसी सिग्नल होता है उस डीसी सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डीसी सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डीसी सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 0 होता है। यस, फ्रीक्वेंसी 0 होता है और करंट कांस्टेंट। अच्छा, तो यहाँ पर जो डीसी मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। मान लें अगर 5 वोल्ट डीसी है
तो ये 5 वोल्ट ही रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, है ना। आइदर वो +5 वोल्ट कहें या -5 वोल्ट कहें। सो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। प्लस माइनस हम लोग कहते हैं कि क्या वोल्टेज में जो डिफरेंस है, अगर एक साइड से देखें तो हम +5 वोल्ट बोलते हैं और दूसरे साइड से देखें तो हम उसे -5 वोल्ट बोलते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। ओके, सो अगर हम डीसी वोल्टेज की बात करें तो उसे हम +5 वोल्ट या -5 वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, बट हियर इन दिस केस व्हाट वी कैन सी दैट कि ये जो डीसी सिग्नल है वो या तो पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता है ना। तो अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि वो एक डीसी सिग्नल है। तो ये पॉजिटिवनेस का, या अगर इस डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो ये जो हमें मान लीजिए दिस इज पिक्चर नंबर 1, दिस इज पिक्चर नंबर 2। सो दिस पिक्चर नंबर 2 हैज ओनली द पॉजिटिव कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इट्स आउटपुट। ओके, तो हम, और ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डीसी सिग्नल कि जो आउटपुट जो सिग्नल मिलता है दैट हैज ओनली द पॉजिटिव पार्ट और ओनली द नेगेटिव पार्ट। ओके, सो ये जो सिग्नल है दिस इज नॉट अ प्योर डीसी। ये डीसी तो है बट नॉट प्योर। प्योर क्यों नहीं कहेंगे इसे? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 0 से शुरू होकर किसी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 0 पर आ रहा है। यहां पर भी क्या देख रहे हैं हम कि यहां से शुरू हुआ 0 से और कुछ मैक्सिमम जाकर फिर मिनिमम पे आया। तो मुझे बताएं कि साइनोसॉइडल सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ये भी नहीं बोलोगे। 1 साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2 1/2। साइन 45 का? 1/√1/2 हाँ? 1/2 साइन 60 का? √3/2 साइन 90 का? 1 1 होता है। साइन 120 का? बताइए जल्दी से। साइन 120 का वैल्यू? √3/2 √3/2। Yes, sir. ओके। साइन 150 का? One 1/2 हाँ? 1/2 1/2 कैसे, मुझे बताएंगे कैसे आया 1/2? सर साइन 90 + 60 की है तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए साइन 180 का वैल्यू? 0 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। अच्छा इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े। 0 से 1 साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 2 कितना कितना जल्दी बताइए। -1 -1/2। साइन 240 का?
इतना देर लगाओगे? इतना सारा minus वैल्यू। root 3 by 2. -√3/2। Minus root 3 by 2. इसके आगे 270 का -1 माइनस -1 -1। yes sir. sin 360 का वैल्यू बताइए। Zero. 0 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है वो किसी एक रेंज में घूम रहा है। कौन से रेंज में घूम रहा है? कहां से कहां तक वैल्यू लाई कर रहा है? फ्रॉम मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर? इस पूरे टेबल में मिनिमम वैल्यू कितना है? -1 -1 है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। तो किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का, वो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसका वैल्यू क्या होता है? -1 से 1 के बीच लाई करता है। ओके, साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच लाई करता है। तो मैंने यहाँ पर एक साइनोसॉइडल सिग्नल ड्रॉ किया है फिगर नंबर 1 में, और फिगर नंबर 2 में उसका एक रेक्टिफाइड आउटपुट दिखाया है जहाँ पर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो ये मैक्सिमम तो होगा, लेकिन 0 से फ्रॉम 0 टू T1, इस टाइम 0 से लेकर T1 में ये एम्पलीट्यूड 0 से लेकर 1 तक वेरी किया और उसके बाद फिर वापस से 0 पे आ गया। तो दिस इज नॉट अ प्योर डीसी सिग्नल, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है। इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ये तो डीसी का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बट द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू ऑफ डीसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये फॉलो नहीं कर रहा है। सो हमें क्या करना पड़ता है इसे? हमें क्या करना पड़ता है इसे? क्या करना पड़ता है? हमें इसे क्या करना पड़ता है प्योर डीसी पाने के लिए? फिल्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए फिल्टर लगाना पड़ता है ना, इन द सेम वे यहाँ पर भी फिल्टर लगाना पड़ता है, लेकिन वैसा फिल्टर यहाँ नहीं लगाते हैं जो कि पानी के केस में लगाते हैं। यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे दैट विल मेड अप ऑफ सम सर्किट्स। ओके, सो यहाँ पर हमें जो पर्टिकुलर ये सिग्नल दे रहा है, इस डायोड के आउटपुट में जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो एक रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो एनवेलप डिटेक्टर है, ये एनवेलप डिटेक्टर सर्किट जो है, दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। बट हियर वी विल हैव a capacitor. So why we have a capacitor here? Okay, let us see. तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा अब मुझे बताएंगे कोई? क्योंकि हमने ये जो इन्वेलप डिटेक्टर है, इन्वेलप डिटेक्टर का क्या काम है कि ये जो एम सिग्नल हमें मिला है, मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें क्या मिलेगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल मिलेगा। ओके, सो द इनपुट टू दिस सर्किट इज द इनपुट AM सिग्नल and this is passed through a tuned circuit, so it is a tuned transformer. Okay, so this is the tuned transformer, and when this is passed through obvious है कि इस ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल पास हो रहा है, उस सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होगी? वो AC सिग्नल होगा या DC सिग्नल होगा? ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? सर AC को DC में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर AC को DC में कन्वर्ट करता है। सॉरी सर, लो हाई वोल्टेज को लो में चेंज करता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है ना? स्टेप डाउन। किस चीज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है?
उसके एम्पलीट्यूड को, वोल्टेज को, ठीक है। तो लेकिन बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, ये फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है, जो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर हमारे गली मोहल्ले में लगा होता है, वो सिर्फ वोल्टेज को अप डाउन करता है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर दो कॉइल्स आपको दिख रहे हैं, इसे हम शो करते हैं N1 is to N2, where N1 और N2 क्या है? N1 is the number of turns in the primary coil. Okay, so this is the primary coil. And this is secondary coil. तो ये ट्रांसफार्मर है, अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ये डिपेंड करता है इस नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे। वॉट एवर इट इज, हम वहां नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इधर से मतलब नहीं है फिलहाल। सो यहाँ पर अब ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, क्योंकि इधर से एक एसी सिग्नल आ रहा है, ओके, यहाँ पे एक एसी सिग्नल इंड्यूस होगा, तो ये डायोड कब वर्क करेगा? कोई नहीं बोलो। जब अपर टर्मिनल में पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव तो यस, मतलब जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब यहाँ पर का वोल्टेज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस टर्मिनल, ओके। सो जो भी है, we have this forward biased diode, okay. So what will be the case? Now अभी ये जो डायोड है, now this diode what it will do, ये जब फॉरवर्ड बायस होगा तब हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, और जब रिवर्स बायस होगा तो हमें आउटपुट में कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, ओके। वो कैसा होगा, लेट अस सी हियर। हमने जो यहाँ पर सिग्नल ड्रॉ किया है, ओके, लेट अस सी हियर। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इससे आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि सर आप जो सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें तो स्पेसिंग एक है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगा, है ना। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ओके। तो अब यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, पेज का साइज थोड़ा छोटा करें तो पूरा पेज दिख पाएगा। ना यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में भी बताएंगे। कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर वर्क करता है, ओके। तो कैपेसिटर जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज। सो अच्छा, चलो हम यहाँ पर नहीं जाते हैं, पहले हम पहुँचते हैं कहाँ, पहले हम पहुँचते हैं जस्ट ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ड्यू टू दैट फॉरवर्ड बायसिंग वी विल हैव ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल। हमें क्या मिलेगा, इस सिग्नल का सिर्फ हमें पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, जो भी सिग्नल यहाँ से आ रहा है उसका सिर्फ हमें पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, मतलब like this part, this part, this portion, this portion, this portion, this portion and this portion। ये सभी को क्लियर है कि अगर ये जो आउटपुट यहाँ हमें मिल रहा है, मतलब ये जो इनपुट आ रहा है डायोड पर, इस डायोड का हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा,
सिर्फ पॉजिटिव पल्स मिलेगा, नेगेटिव पल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में क्या होगा, ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, ड्यू टू विच दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल विल नॉट बी देयर एट द आउटपुट ऑफ द डायोड। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम कैपेसिटर पर आते हैं। जब ये डायोड पॉजिटिव पल्स मिलेगा डायोड को, तभी हम जानते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस होगा और तब हमें आउटपुट में यहाँ सिग्नल मिलेगा। नाउ जो भी इस सिग्नल का जो भी सिग्नल यहाँ आ रहा है, इस सिग्नल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, अप टू दैट वोल्टेज दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ से ये आउटपुट का वैल्यू बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ओके, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाकर कैपेसिटर चार्ज होगा। ओके, up to a maximum value the capacitor will get charged। अब क्या होगा, फॉर द पॉजिटिव हाफ, जैसे ही सिग्नल का नेगेटिव हाफ आएगा, डायोड रिवर्स बायस होगा, तो फॉर द पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होगा, हमारा ये सर्किट वर्क करेगा और तब क्या होगा, डायोड दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड। जब रिवर्स बायस होगा तब ये डायोड ओपन हो जाएगा और ये डायोड जैसे ही ओपन होगा, this capacitor will get discharged through this resistor। ओके, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कब तक ये डिस्चार्ज होगा, जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स नहीं आ जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये पॉजिटिव पल्स था, अब ये जब तक नेगेटिव पार्ट रहेगा तब तक डायोड रिवर्स बायस रहेगा। जैसे ही पल्स का या सिग्नल का पॉजिटिव पल्स आएगा, अगेन द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। मतलब अप टू सम एक्सटेंट दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज एंड अगेन व्हेन द पॉजिटिव पल्स विल कम, द कैपेसिटर अगेन व्हाट इट विल डू, अगेन इट विल स्टार्ट चार्जिंग अप टू दिस वैल्यू। ओके, अगेन तो जब भी पॉजिटिव हाफ आएगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और जैसे ही नेगेटिव आएगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल डिस्चार्ज अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड अगेन जैसे ही पॉजिटिव पल्स आएगा फिर से क्या होगा, पॉजिटिव पल्स को ये पकड़ लेगा और फिर से चार्ज होना शुरू होगा। ये फिर से डिस्चार्ज होगा, कब तक, जब तक कि नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स नहीं आता है। तो फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव पल्स आएगा और ये चार्ज होगा अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। फिर क्या होगा, फिर से ये चार्ज होना शुरू होगा, जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव पल्स आएगा फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव पल्स आएगा तो चार्जिंग होगा अप टू द सर्टेन लिमिट, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा जब नेगेटिव पल्स आएगा और ये फिर से पॉजिटिव पल्स आएगा तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलेगा अप टू दिस मच। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वी विल हैव ओनली दिस पोर्शन ऑफ द कर्व। आर यू गेटिंग दैट? तो हमें जो आउटपुट अभी मिल रहा है, where is the eraser? ओके, अभी जो हमें सिग्नल मिला है, दिस सिग्नल इज लाइक दिस विच इज रेड इन कलर। ओके, तो अभी ना ये जो सिग्नल है आप देख सकते हो कि हमारा जो इन्वेलप है वो इन्वेलप कैसा है, द इन्वेलप इज, यस द इन्वेलप इज दिस, है ना। और आप क्या देख रहे हो कि हमें जो सिग्नल मिला है वो सिग्नल कुछ ना कुछ इस इन्वेलप को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो सिग्नल हमें मिल रहा है दैट इज समवॉट इक्वल टू और सेम एज दैट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट एक क्या होता है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल होता है। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर
एक एज मिल रहा है ना। एज और कॉर्नर, ओके। सो या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइक। सो दिस स्पाइक इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू discharging of capacitor। तो हम क्या यहां से देखेंगे कि कैपेसिटर क्या हो, ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हो। सो कैपेसिटर जितना ही ज्यादा डिस्चार्ज होगा हमें उतना ही बड़ा स्पाइक मिलेगा, मतलब हमें उतना ही ज्यादा एज मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें ये स्मूथ कर्व चाहिए जो कि हमारे एनवेलप को बना रहा है। ओके, सो वी डू नॉट नीड दिस स्पाइक्स। एक और चीज क्या है कि ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है दैट इज चार्जिंग। सो यहां पर एक टर्म है दैट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी। ओके, सो ये जो सर्किट है दिस इज एन आरसी सर्किट। आप यहाँ पर जो सर्किट देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट एन आरसी सर्किट वेयर आर एंड सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो this is an RC circuit and there is a word which is known as time constant and that depends upon the value of R and C. Okay, so the time constant RC, this is known as the time constant RC, which is represented with tau. Okay, so this time constant will have some certain value. तो कैपेसिटर डिस्चार्ज क्या हो, कैपेसिटर ज्यादा डिस्चार्ज नहीं हो। ओके, सो फॉर दैट देयर विल बी हायर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट RC। ओके, तो हम एक ऐसा वैल्यू RC का चूज करें जिसके कारण क्या हो, उसका जो वोल्टेज है ज्यादा रिड्यूस नहीं हो। ओके, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है वो ज्यादा रिड्यूस नहीं हो और उसके ज्यादा रिड्यूस नहीं होने के पहले ही नेक्स्ट पॉजिटिव पल्स आ जाए एंड द कैपेसिटर विल स्टार्ट charging again in a very fast manner. So due to which that for that the time constant should be large. Okay, time constant ज्यादा होगा तो कैपेसिटर चार्ज तो जल्दी होगा but it will discharge very less in longer period of time. Okay, so यहाँ पर दो लिमिटेशन है इसका। एक क्या कि अगर हम टाइम कांस्टेंट को बहुत ज्यादा कर देते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट को हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। ओके, लेट अस सी। सो हमारे पास जो सिग्नल है इज मोर और लेस लाइक ओके। सो ये जो भी सिग्नल हमारे पास है, दिस सिग्नल विल हैव, so here we have these spikes like these. Okay, so हम क्या कह रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइक हियर द कैपेसिटर इज चार्जिंग, here the capacitor is charging. Okay, now if it is not discharging too much and if the time constant is very high, so in that case what happens, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो कुछ पीक्स है वो छूट जाएगा।
ओके, सो हम क्या कह रहे हैं दैट if the time constant is very high, in that case some or more of the peaks will left behind. मतलब जो peaks डिटेक्ट होना चाहिए था वो peaks डिटेक्ट नहीं होगा और हमारा जो सिग्नल है वो टोटल आउटपुट में नहीं आएगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ demerit is known as डायगोनल क्लिपिंग. ओके, सो ये डायगोनल क्लिपिंग नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू